A day without prayer is a day without blazing, and life without prayer is life without power. वेलकम ऑल इन आईसीटी कोफरी चैनल। आप सभी का स्वागत है आईसीटी कोफरी चैनल में। व्हेन अ प्रेयर बिकम योर हैबिट, मिरेकल बिकम योर लाइफस्टाइल। भगवान के नाम के साथ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा 6th चैप्टर का रिवीजन राउंड। अभी तक हमने 5th चैप्टर कंप्लीट कर दिए है। 6th चैप्टर के रिवीजन राउंड के अंदर हम आ गए। 8 चैप्टर हमने कंप्लीट हो गए हैं। अब रिवीजन राउंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस सब्सक्राइबर ने सब्सक्राइब किए चैनल, सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। जो नए व्यूअर्स है उनको ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आईसीटी कोफर गूगल के ऊपर जाके सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पे क्लिक करो ताकि आपको नोटिफिकेशन घर बैठे मिलती रहे। दूसरा, गूगल प्ले स्टोर पे से आप आईसीटी कोफर की ऐप भी फ्री में ले सकते हो। उसमें कोई भी आपको नई नई जानकारी, नए नए टेक्स्ट बुक रिलेटेड नए वीडियोस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स गुजरात बोर्ड unemployment division round. Before we start this division round, just highlight what we are discussed in sixth chapter के अंदर हमने क्या वो देखा वो हम डिस्कस करें अभी थोड़ा सा, ताकि आपको थोड़ा सा रिवाइज का चांस मिल सके। तो हमने 6th चैप्टर के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो, जो चैप्टर के अंदर हमने पॉइंट कंप्लीट किए थे। एम्प्लॉयमेंट के मीनिंग, अनएम्प्लॉयमेंट के मीनिंग, सॉरी, इन कॉमन parallels, unemployment is a situation where the person is willing to work but doesn't get a work. Unemployment is not only a problem of the labor, but other factor of production can be also unemployed. But commonly unemployment is a seen relation of the labor only. So we have defined under the keeping the mind of labor. According to Professor Pigu, very important in March 2018 question are there. Give the definition of PIGU. So a person can be called unemployed only when he is willing to work but is not able to find work. Very important definition. Underline this. I hope you have all have one pen and notebook in your hand. So underline or highlight it. Very important. A person can be called unemployed only when he is willing to work but he or she are not able to find work. यानी जो रेडी है, काम करना चाहता है, जो भी रेट के ऊपर उनको मिले वो रेट पे काम करना चाहते हैं, मगर उनको काम नहीं मिला, कांट फाइंड जॉब, दैट इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये बात हमने कंप्लीट की थी। उसके बाद अलग अलग अर्थशास्त्री ने, इकोनॉमिस्ट ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी थी। उसके अंदर अकॉर्डिंग टू द अबाउट डेफिनेशन, a person is eager and ready to work but they are not able or they are not able to find a good job or any job and they become a unemployed, that is called unemployment. The term unemployment is understood in the supply of the active force. Active force supply include the people in the age group of underline, very important. Another MCQ are there, 15 to 64 के बीच जो भी एज है वो एक्टिव वर्कफोर्स के अंदर आती है। Then types of unemployment, very important question are there here because there are in section D. What is the measurement of the Dr. Raj Krishnan इकोनॉमिस्ट जो राज कृष्ण है, उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट को कौन से 4 कैटेगरी में, व्हाट आर द नेचर ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के नेचर कैसे हम यूज करेंगे, हाउ टू मेजर द अनएम्प्लॉयमेंट। सो अनएम्प्लॉयमेंट आर मेजरमेंट बाय द राज कृष्णन इन 4 वे। फर्स्ट, इन राज कृष्ण कमिटी रिपोर्ट 2011-12, first is time, second income, 4 willingness, and 5 is productivity. So here first is time, that is if those who are not getting less than 28 hours in the week, it is very high tendency of the unemployed, and those who are more than 28 but less than 42 hours, it is called less intensive unemployed, that is called time based. Second, income, those who are not able to fulfill their families entire expenditure. When a person get very less income which cannot be solve the problem of his poverty, then from इनकम पॉइंट ऑफ व्यू ही इज पुअर। अगर 30,000 उनको दे चाहिए मगर वो 15,000 ही कमा रहा है, दैट इज कॉल्ड इनकम बेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। विलिंगनेस, व्हेन अ पर्सन एलिजिबल टू गेट अ गुड जॉब बट ही डज नॉट गेट his or her eligibility and accept lower cadre job, दैट इज कॉल्ड विलिंगनेस। विलिंगनेस तो बहुत है, हम ये सीए है, एमसीए है, एमबीए है, तो उसके हिसाब से हमें जॉब मिल जाए, मगर हम उसके लोअर कैटेगरी में जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एलिजिबिलिटी। विलिंगनेस अनएम्प्लॉयमेंट, यानी सीए अगर क्लर्क बन जाए वो। प्रोडक्टिविटी, व्हेन अ लेबर इज वर्किंग विद लेस देन हिज एक्चुअल प्रोडक्टिविटी, देन प्रोडक्शन इज लेस देन
हिज प्रोडक्शन कैपेसिटी, यानी उनके पास जितनी एफिशिएंसी है, जिनकी कैपेबिलिटी है, उनसे वो कम वर्क करता है तो भी वो प्रोडक्टिविटी बेस पे अनएम्प्लॉय है। दैट इज कॉल्ड पर्सन कैन मेक 20 मीटर क्लोथ इन अ डे बट ही ओनली कैन मेक 10 and then he work out. That is called productivity unemployed. According to a measure, some of the types are here very important. Open unemployment, second underemployment. Open unemployment, that is fully unemployed or openly unemployed. There are two various names for that. That is fully unemployed and openly unemployed. Open unemployment के दो नाम है, काफी important है, fully unemployed or openly unemployed. That is those individuals who are ready to work at current wages rate and process of and प्रोसेस ऑफ क्वालिफिकेशन टू, वो क्वालिफाइड भी है, रेडी है कोई भी वेजेस के ऊपर काम करने के लिए, बट डू नॉट गेट एनी जॉब. दैट इज कॉल्ड फुल्ली अनएम्प्लॉयमेंट. Commonly, the current country in which labor supply increase fast and process of the urbanization are there, and the demanding force of labor are not fulfill the employment. That is called open unemployment. People with the open unemployment cannot work and cannot get work. Very important that the age group of 15 to 25 are included in this open unemployment category. And there are three various methods to get the proper number of the open employment. That is via registration in employment exchange, second through sample survey for the labor supply, एंड थ्रू सेंसर. ये तीन काफी इंपॉर्टेंट है सेक्शन बी के लिए, सॉरी सेक्शन ए के लिए. 1 मार्क्स के अंदर आपको पूछा जाता है कि ओपन अनएम्प्लॉयमेंट को हम कैसे जान सकेंगे. तो उनके लिए 3 वेरियस सिस्टम आर देयर. थ्रू रजिस्ट्रेशन इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो रोजगार विनिमय कचेरी है उनके यहाँ से हमें डेटा मिल सकते हैं. थ्रू सैंपल सर्वे फॉर लेबर फॉर सप्लाई एंड थ्रू सेंसस. ये हमारी ओपन अनएम्प्लॉयमेंट हुई. नाउ अंडर एम्प्लॉयमेंट, अंडर यानी ओपन से हाफ. When a labor cannot utilize their capability fully and for certain period accept less capable jobs is said to be unemployed. यानी जो फुल्ली 5 घंटे काम करना चाहते हैं उनको 2 घंटे का काम मिले, पूरे ईयर के अंदर 12 मंथ के अंदर 6 मंथ का ही काम मिला उनको, उनकी कैपेबिलिटी फुल्ली एफिशिएंट 12 आवर्स के मगर उनको 6 घंटे काम मिलते हैं. When a labor is willing to ready to work and certain years, certain days, but even they cannot getting fully hours, days or yes, it is called half or underemployed. For example, a labor working in the industries or agriculture land get work only 5 hours instead of 8 hours. वो 8 घंटे काम करने के लिए कैपेबल है, रेडी है, मगर 5 घंटे के बाद उनको वर्कआउट करना पड़ता है. That is called underemployment. According to the meaning of in rural India, the seasonal unemployment is agriculture sector is the very poor condition that अपने 12 मंथ के अंदर 8 मंथ वो काम करते, 4 मंथ जब मानसून बारिश हो गई उसके बाद क्रॉपिंग हो गया, क्रॉपिंग करने के बाद कटिंग हो गई, अपने फसल को किसी मार्केट में बेच दी, उसके बाद जो 4 मंथ ऐसे ही पड़े रहेंगे जब तक फसल नहीं होगी तब तक वो ऐसे ही बैठे रहेंगे. दैट इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट. सेकंड टाइप से थर्ड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन डी के लिए. उसके अंदर आपको पूछा जाता है कि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या है. तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या है कि हम अगर देखते हैं कि वहां पे 10 मेंबर काम कर रहे हैं, 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, मगर 10 में से 5 को अगर निकाल दे तो भी प्रोडक्शन 10,000 यूनिट ही होता है. तो वो जो 5 निकल गए, दैट इज कॉल्ड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट. इन एनी एक्टिविटी इफ टू मेनी पर्सन आर एम्प्लॉयड एट अ गिवन लेवल ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड व्हेन अ फ्यू person are removed from the work, the total production does not change. There is a exists in disguise unemployment. यानी जो 10 में से 5 को निकाल देते हैं तो 5 की जो प्रोडक्टिविटी वो जीरो है. दैट इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ सच लेबर्स आर जीरो. सो दिस ऑल आर नोन एज अ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड. किसी एक फील्ड के अंदर 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, उसके अंदर 10 मेंबर है, तो पर पर्सन 1,000 की हम एज्यूम कर सकते हैं कि 10,000 इंटू 1,000 इंटू 10 दैट इज कॉल्ड 10,000. तो अब 5 को अगर निकाल देते तो प्रोडक्शन 5,000 होना चाहिए, मगर फिर भी 10,000 ही है. दैट मीन्स द रेस्ट ऑफ द 5 आर नॉट इनपुट देयर एफर्ट्स और एनी प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी, सो दे आर नॉन एज ए डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. देयर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. देयर आर 2 टाइप ऑफ साइकिल इन इकोनॉमी. इकोनॉमी के अंदर 2 साइकिल है, एक तो डिप्रेशन, एक तो इन्फ्लेशन, एक डिप्रेशन. दैट इज बूम फैक्टर्स एंड रिसेशन फैक्टर. बूम फैक्टर के अंदर और रिसेशन फैक्टर यानी डिप्रेशन के अंदर 2 तरह के चेंजेस होते हैं, मगर वो चेंजेस होने का मुख्य रीजन क्या है कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टर और सेवर दोनों अलग अलग पर्सन है. इन्वेस्ट करने वाले और सेविंग करने वाले दोनों अलग है और दोनों के बीच का बैलेंस नहीं है. इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे कब, जब उनकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगी, मगर जब
बूम, रिसेशन, ये दोनों साइक्लिकल है, उनके अंदर से वो गुजर रहे तो उनकी रियल इनकम जो है वो कम होती जाती है। यानी उनके पास जो नेशनल इनकम कम होगी, पर कैपिटा इनकम कम होगी, तो वो सेविंग ही नहीं कर पाएगा। ड्यू टू लेस ऑफ सेविंग वी आर नॉट एबल टू इन्वेस्ट इन एनी अदर एक्टिविटी ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज के अंदर हम कोई भी सेविंग से अंदर से इन्वेस्ट होती है। आपके 10,000 कमाते हो, तो 2,000 आपके अगर बच रहे हैं तो 2,000 आप बैंक में डालोगे, बैंक वाले कुछ ना कुछ उनसे करेंगे। मगर आपकी पर कैपिटा इनकम या आपके जो आपकी हाथ में जो इनकम होती है वो अगर कम होगी और आप बैंक में कुछ नहीं इन्वेस्ट करोगे, पोस्ट में कुछ नहीं इन्वेस्ट करोगे, आपकी इकोनॉमी के अंदर सेविंग ही जीरो है, तो इन्वेस्टर के पास कुछ नहीं बचेगा, तो बैलेंस नहीं हो रहा है। दैट वाई देयर इज अ साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है टू फेजेस। फर्स्ट इज इन इन्फ्लेशन टाइम। इन्फ्लेशन के अंदर बहुत सारा माल पड़ा हुआ होगा है, मगर वो सभी माल को अच्छी तरह से बेच लेते हैं, डिमांड भी ज़्यादा होती है। डिमांड ज़्यादा होती है, उसके रिलेटेड बहुत सारे सप्लायर अपने सप्लाई को मार्केट में ले लेते हैं, और जब प्राइस अपने लेवल से भी ज़्यादा बढ़ जाती है तो नो वन इज रेडी टू बाय, तो भरा पड़ा रहता है फिर मार्केट पूरा। तो उस टाइम में जो स्टॉक है वो अपने आप ही अपने गोडाउन के अंदर पड़े रहेंगे, तो अगले प्रोडक्शन के बारे में सोचेंगे नहीं। जो रिसेशन है यानी डिप्रेशन है, डिप्रेशन हम जानते हैं कि 1929 के अंदर वर्ल्ड डिप्रेशन हुई थी अमेरिका, इंग्लैंड के अंदर। उसके अंदर बहुत सारा इफेक्टिव डिमांड नहीं थी। इफेक्टिव डिमांड यानी आपकी परचेसिंग पावर, अगर परचेसिंग पावर रुक जाती है, सुबह 10 बजे आपके लॉक ओपन हुए और 3 बजे तक कोई कस्टमर नहीं आते, तो जो स्टॉक भरा पड़ा है वो नहीं बेचा जा रहा है, तो दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे। सो एक्सेस वर्कर आर नॉट इन द वर्किंग एरिया, सो दे हैव टू वर्क आउट फ्रॉम द यूनिट्स, उनको हम बाहर कर देंगे, और जब पूरा इफेक्टिव डिमांड होगी तब उनको लेंगे, तो उन पीरियड के दौरान उनको बाहर जाना पड़ेगा। दीज आर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। देन फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रिक्शनल इन टर्म्स ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड ओल्ड टेक्नोलॉजी। व्हेन द न्यू टेक्नोलॉजी हैज इंक्रीज, द ओल्ड टेक्नोलॉजी आर वेरी डिफिकल्ट टू स्टे इन द कंपटीशन। जो वर्कर पहले ओल्ड मोबाइल बनाते थे, अब उनको स्मार्टफोन पे तबलीग करना है, उनकी जो एफिशिएंसी अब स्मार्टफोन के ऊपर होनी चाहिए। अगर उनके पास ये नॉलेज नहीं है तो दे हैव टू वर्क आउट फ्रॉम द फैक्ट्री, एंड दे हैव टू गेट अपडेट्स, एंड दे हैव टू गेट ट्रेनिंग। इफ द ट्रेनिंग आर get taking, and then after they can recover their jobs. So when this type of activity is going on, it is called frictional unemployment. अगर कोई टाइपिस्ट को ऐसा बोला जाए कि आपको कंप्यूटर पे अब वर्क करना है, ईमेल करना है, ऑनलाइन आपको चैटिंग करनी है, ऑनलाइन पढ़ाना है, इट नॉट पॉसिबल बिकॉज दे आर यूज्ड टू इन टाइपराइटर और सम ऑफ द मैनुअल वर्क. So at that period, if they are not upgraded, if they are not trained, they are known as a frictional unemployed. Second, this after very very important is causes of unemployment. Unemployment क्यों है, कैसे है, we can find out this all in this. There are 11 1 2 I think 11 point are there, and in board exam it may be 7 or 5 you have been asked. So very very important how to remember. रिवीजन राउंड का मकसद ही ये है कि आपको कैसे याद रखना है पूरे चैप्टर को याद रखने के बाद आपको उनके अंदर पॉइंट को कैसे लिखना है, प्रेजेंट कैसे करना है, कौन से 5 पॉइंट इजी है, कौन से 6 पॉइंट इजी है, that is all are in this video. So keep watching till the end and keep one notebook because some of the tricks are also there and you can very easily remember this all point. ये अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे, लास्ट में जब हम सेकंड पार्ट में आएंगे रिवीजन राउंड के इसी वीडियो के अंदर, तो आपको पता चलेगा कि कैसे पॉइंट को याद रखते हैं, ABCDE के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो सभी आपको आंसर्स के साथ आपको दिखाई देंगे. अब to improve the rate of the economic development of the country and solve the problem of unemployment, in 1951 planned steps were taken but problem under unemployment become more and severe. ऐसा लगा था कि 1951 के प्लानिंग से जो हमने प्लानिंग कमीशन की जो भी हमने सेटअप किया था, उससे हमने ऐसा सोचा था कि अगर प्लानिंग से हम चलेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. बट at the end of the very very important this paragraph, at the end of the planning, the level of the employment can be known from the following information. At the end of the first 5-year plan, very very important, at the end of the first 5-year plan, 53 lakhs people were unemployed, which increased to 304 lakhs at the end of the fifth 5-year plan. There is 348 lakhs are ended in 19th plan. Yani at the end of the first 5-year plan, there are 53 lakhs people were unemployed, which were increased to 304 lakhs at the end of the 5th 5-year plan.
and 348.5 lakhs at the end of the 9th year planning. यानी 9th year planning के साथ हम जाए तो बहुत अभी भी 348.5 lakhs are unemployed in India. From the above information, it can be seen that India faces extensive unemployment and it is increasing day by day, which is serious problem. And which are the reasons that we discuss here? First, high rate of population. We all know 189 countries there are. India is the second in the top most, and first is China. And due to this factor, the active labor force between 15 age to 64 age are demanding for the job, and in the same the employment opportunity are not there, so the difference between these two, it will create unemployment. 107 crores every year, including in India. 170 crores of population are increase in India, that is one Australia population are added in India. So you can understand that the rate of growth rate of Indian economy is very high, so that at same rate the employment opportunity are not there. जितनी तादाद में अगर जनसंख्या बढ़ रही है उतनी तादाद में हमारे पास काम देने की क्षमता नहीं है. जो हमारी एम्प्लॉयमेंट के जो रेट है वो रेट काफ़ी कम है, और बर्थ रेट के जो रेट है, सेंसस जो दिख रही है हमें, सेकंड रैंक पे है हम पूरे वर्ल्ड के अंदर. 101.70 करोड़ एवरी ईयर हमारे इंडिया के अंदर ऐड होते हैं, तो उसके हिसाब से हम देखें तो बहुत ही बुरा हाल है इंडियन इकोनॉमी का. नाउ सेकंड रीजन इज स्लो राइज इन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. जितनी तादाद में बढ़ रही है पॉपुलेशन, उतनी तादाद में हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं बढ़ रही है. हम देखें तो 3.5% growth rate in first decades, then after 7.6 in the 10 5 plan and 7.8 and 11 5 plan. very very important data is हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट है वो 3.5% फर्स्ट प्लानिंग पीरियड के 3 डिकेट के अंदर था. उसके बाद द ग्रोथ रेट इंक्रीज टू 7.6 इन 10th 5 प्लान. 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर 7.6 हुआ और 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर 7.8 हुआ. तो हम देख सकते हैं अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट अगर हमारा लो है, then it is not possibility to high rate of employment. एम्प्लॉयमेंट के अंदर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट रेट होना चाहिए. डेवलपमेंट रेट के डिपेंडेंट है ग्रीन रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, उनका ग्रोइंग अप होना चाहिए. ग्रो अप अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होनी चाहिए तब जाके वो बढ़ेगा. मगर इन इंडियन इकोनॉमी देर आर नॉट पॉसिबल बिकॉज द हाई पॉपुलेशन आर कवर दिस ऑल थिंग्स, and green revolution in agriculture sector remain only immediate areas. So other agriculture field are very going to slow down, and employment cannot be created as per the labor supply, which increase employment. Third point, low rate of saving and investment. Indian planning has increased national income, but simultaneously population growth rate also increased. जितनी हमारी नेशनल इनकम बढ़ रही है उनसे ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है. एज ए रिजल्ट पर कैपिटा इनकम आर डिक्रीज. पॉपुलेशन जो है वो डिवाइड करेगी नेशनल इनकम को, तब जाके पर कैपिटा इनकम होगी. मगर पॉपुलेशन ज़्यादा अगर डिवाइड कर रही है तो पर कैपिटा इनकम कम होगी. पर कैपिटा इनकम अगर आपकी कम है और जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है उसके ऊपर हम खर्च ज़्यादा करेंगे तो हमारी सेविंग जो है वो जीरो होगी. सेविंग जीरो डेट मीन्स इन्वेस्टमेंट जीरो, और इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ही हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ता है. मगर इन्वेस्टमेंट अगर कम होगा तो वी आर नॉट एबल टू गो दिस ऑन. देन आफ्टर कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक, there is a scarcity of the capital and abundance of the labor in India. Very very important, the scarcity of the capital की scarcity and abundance of the labor in India. Abundance very very important in the section D. Capital intensive method are not useful in Indian economy, or labor intensive method is very very useful. So this paragraph is very important for that statement. There is scarcity of the capital and abundance of the labor. लेबर की बहुत तादाद है हमारे यहाँ और कैपिटल की कम है. In these circumstances, to solve the problem of the unemployment, labor intensive technique of the production should have been adopted. But from the second five-year plan, India has adopted development of the heavy and basic industry. That is the big mistake of Indian economy. We are only and only importance given by the बिग एंड हैवी इंडस्ट्रीज. हमने बिग और हैवी इंडस्ट्रीज को पे ऊपर ज़्यादा जोर दिया. इन दैट पीरियड द प्लानिंग ऑफ सीम also placed in the capital intensive technique. Labor intensive technique was given less importance. In agriculture, in industries, even the mechanism of the adopted which increase employment at slow rate. The industry sector also increased productivity and get security against the organized labor unions. Such a policy is adopted which saves laborers. Other than that, railways, irrigation, roads, construction, public sector to state of state also use capital intensive technique. As a result,
unemployment problem has become acute. That why Bhagwati Committee and Venkatesh Committee, which was formed study unemployment, also recommended to use the LACE mechanism. जो भगवती कमेटी है और वेंकट रामन कमिटी है, उन्होंने भी फोर्स दिया कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर 100% अगर हम कैपिटल इंटेंसिव मेथड से करेंगे तो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग द हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. Then after lack of the vocational education in India, we can find out there are so many weakness of education facility in India. One of the reason of high educational unemployment is ineffective educational system. Ineffective, that is called those who can work according to the changing working atmosphere in every sector. Such type of worker are not created with the objective of increasing economic growth rate. Technology and the mechanism has been adopted by the industries and agriculture, so such labor are required who have knowledge of these techniques, but the present education system is opposite to that. Hence, skilled laborers are few because of lack of vocational education. Present education failed in the mental and the physical formation of human being. Even after acquiring education, a person is incapable of self-employment and suffer from the problem of unemployment. यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम जो डिमांड कर रही है, जो टेक्नोलॉजी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, टेक्निक से आगे बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रही है हर एक जगह टेक्नोलॉजी, तो उसके हिसाब से वोकेशनल एजुकेशन होना चाहिए कि ग्रेजुएशन होने के बाद बेसिकली बीए और बीकॉम जो दो फील्ड है उसको बहुत सारे जो एजुकेटेड पर्सन है बैचलर करने के बाद भी उनके पास 2-3 साल तक कुछ इनकम नहीं होती, वो ऐसे ही घूमते रहते हैं, अप्लाई अप्लाई बट नो रिप्लाई होता है, तो उनको वोकेशनली ट्रेनिंग मिलनी चाहिए ताकि वो वहां से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सके. सेकंड, लेक ऑफ मैन पावर प्लानिंग. लेक ऑफ मैन पावर प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेक ऑफ मैन पावर प्लानिंग मीन्स इंडिया के अंदर जो प्लानिंग है वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट नहीं है. दैट मीन्स the type of labor which is in demand presently in India, availability of the similar type of labor supply is not possible. जहाँ जो पढ़ रहे हैं 5 साल के बाद जिनका ग्रेजुएशन होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन होगा, इंजीनियरिंग होगी, डिग्री होगी, उसके बाद उनको जो जॉब मिलनी चाहिए वैसे वो पढ़ नहीं रहे और उनका एजुकेशन सिस्टम जो है वो टोटली अपोजिट है. जो चाहिए जिस फील्ड के अंदर वैसी एजुकेशन सिस्टम इंडिया के अंदर नहीं है. दैट इज कॉल्ड मैन पावर प्लानिंग, लेक ऑफ मैन पावर प्लानिंग. यानी अगर 5 साल के बाद बस 10,000 इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट है तो 10,000 इंजीनियर प्रेजेंट में वो डिग्री लेने के लिए वो पढ़ रहे हो, ऐसा प्लानिंग होना चाहिए. मगर यहाँ पे टोटली रिवर्स है. चाहिए 10,000 डॉक्टर्स, 10,000 इंजीनियर, मगर आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले, साइंस वाले अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं और सिर्फ पढ़ने का मकसद, सिर्फ ग्रेजुएशन और डिग्री लेने का मकसद है. एवरी ईयर लैक्स ऑफ एजुकेटेड यूथ ऑब्टेन डिग्री एज द लेक ऑफ नॉलेज एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड इज प्रेजेंट कंटिन्यूस present economic development. They are unemployed even after being educated. This is direct reason the lack of planning human resources. In many cases, due to lack of employment opportunities, the doctors and engineers with a higher degree go to foreign country because of not getting suitable work for the country. Very very important in 1 marks. What is drain of brain? What is drain of brain? Brain, that is intelligence of India. इंटेलिजेंस जो भी हमारे सिटीजन्स के अंदर है, अगर उनको यहाँ पे अगर अच्छी जॉब मिलती है एज पर देयर एजुकेशन, इफ दे आर गेटिंग गुड जॉब, दे आर नॉट गोइंग फॉर अब्रोड. अगर यहाँ की ब्रेन, गोल्डन ब्रेन अगर बाहर जाएगी तो इंडिया को लॉस है. दैट मीन्स दिस इज अ कंडीशन, वन साइड मूवमेंट. दिस इज वन साइड मूवमेंट इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ ब्रेन, मूविंग फ्रॉम इंडिया टू अब्रोड, मूविंग फ्रॉम India to abroad. But which person? Indian intelligence. Indian intelligence is moving from India to abroad. This is one-sided movement, is called brain to brain. हमारा brain drain हो रहा है, यानी बाहर बह रहा है हमारा अच्छा brain. Inefficiency of the public sector. पहले हमने ज़्यादातर प्राइवेट और कोऑपरेटिव सेक्टर के ऊपर ध्यान नहीं दिया. सेकंड 5 प्लान के अंदर हमने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा बिग और हैवी स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलना चाहिए. दूसरा हमने देखा कि उनके ऊपर हम भरोसा रखेंगे, की फैक्टर जो है उनको पब्लिक सेक्टर के अंदर हमने रखे, मगर उनके जो रिजल्ट आए, उनके जो टारगेट था वो टारगेट वो हल नहीं कर पाए, टारगेट को अचीव नहीं कर पाए. आफ्टर इंडिपेंडेंस पब्लिक सेक्टर वॉज गिवन मोर इम्पोर्टेंस in compared with private sector. There is an immense increase in the number of public sectors in investment thereof.
The quantity of the employment generation estimated from the public sector was not able to generate more employment because of its low productivity. Employment-oriented private sector were under control for the development of the public sector. Moreover, private sector development was neglected, and also there was a less employment generation and employment entry. ये एक इनएफिशिएंसी पब्लिक सेक्टर की हुई, प्राइवेट को ध्यान नहीं दिया, प्राइवेट के अंदर गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं हुआ, तो दोनों तरफ से गवर्नमेंट को लॉस हुआ और लो प्रोडक्टिविटी से एम्प्लॉयमेंट भी कम हुई. Negligency towards the agriculture sector. Agriculture sector is the key factor of Indian economy. More than 60% or 70% are engaged in this field. मगर गवर्नमेंट ने सेकंड फायर प्लान के अंदर बेसिस इम्पेसिस दिया एग्रीकल्चर फील्ड को नहीं, मगर बिग और हैवी इंडस्ट्रीज को, तो उनको निगलेक्ट किया. इफेक्टिव जो इंडियन इकोनॉमी के अंदर है वो ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो अपनी जॉब वहाँ नहीं लेते, डायरेक्ट वो एग्रीकल्चर फील्ड से कमाने लगते हैं. मगर उनके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, इरिगेशन की फैसिलिटी, रोडवे की फैसिलिटी नहीं हुई, तो उसकी रिजल्ट क्या हुई? ग्रीन रिवॉल्यूशन हर एक के फील्ड में नहीं हुआ, सिर्फ पंजाब हरियाणा जैसे स्टेट के अंदर हुआ, बाकी के स्टेट के अंदर ये फुट नहीं मिले. तो पूरा जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो मानसून पे टिका था उसके ऊपर टिक रहा है, और उसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ अगर फैसिलिटी नहीं है तो वहाँ से भी अनएम्प्लॉयमेंट के चांसेस बढ़े. लो मोबिलिटी ऑफ वर्कर जो है लैंड लेबर इंटरप्रेन्योर कैपिटल, उनकी मोबिलिटी है जो वो लो है. देयर आर सो मेनी रीजन इफेक्ट देम, फॉर एग्जांपल देयर फैमिली, देयर रिलेशन, देयर लैंग्वेज, रिलीजियस, देयर कास्टिज्म, कल्चर, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस ऑल आर नॉट, एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी आर ऑल्सो प्रॉब्लम. यहाँ से अगर गुजरात से, अगर महाराष्ट्र से राजस्थान अगर कोई जॉब करने के लिए जाना चाहता है, तो उनको ये सारे सभी रीजन इफेक्ट करते हैं. वो डायरेक्टली मूव नहीं करेगा, चाहे 10,000, 5,000, 10,000, 2,000, 3,000 कम कमाएंगे, मगर हम यहाँ से स्टेट चेंज नहीं करेंगे. दिस आर द टेंडेंसी ऑफ द लेबर, दैट लो मोबिलिटी वर्कर्स आर ऑल्सो गेटिंग लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, लो रेट ऑफ वेजेस आर देयर, सो दे कैन earn so many less person of income. Lack of infrastructure facility in rural areas. Because of lack of infrastructure facility, unemployment has become a major problem in rural areas. Lack of transportation facility, lack of proper roads, lack of education, health and electricity facility are the reason of the low generation of the employment. ये सभी अगर लो है, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा नहीं मिल रहा, रोड ट्रांसपोर्टेशन अगर कम है, रूरल एरिया के अंदर बिजली की फैसिलिटी नहीं है, तो वहाँ के लोग माइग्रेट होके सिटी के एरिया के अंदर अट्रैक्ट होंगे, और सिटी के एरिया के अंदर जो भी अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम है उनको वो बढ़ाएंगे. अगर ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी गांव में बढ़ाई जाए, पक्के रोड, एजुकेशन की सिस्टम, हेल्थ, अगर उनको ये बढ़ा मिले, तो लोग वहाँ रहेंगे, वहाँ से कुछ ना कुछ कमाएंगे. वहाँ अगर कोई इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करे, तो वहाँ से वो एग्रीकल्चर के साथ साथ ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर भी, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंदर भी काम करेंगे, और वहाँ से वो अपनी employment generate करेंगे. So these are the conclusion of the total 10 point of the causes of unemployment. Now we are discuss measures to reduce unemployment. हम कैसे उनको reduce करेंगे, अब ये problem है उनको कैसे solve किया जाए, उनके बारे में 7 point के अंदर हम discuss करने वाले हैं. Measures to reduce unemployment. After understanding the extent of the reason of the unemployment in India, it is clear that in the problem of unemployment is becoming serious day by day. From its reason, it will be easier to find out the solution. The problem of unemployment is not only economic; it is also give the rise to social, moral, and physical, psychological issue. From political point of view, also problem is serious. That why the India right from the first fire plan. One major objective is to reduce unemployment, especially from the 5th and 6th fire plan. The prime object is to reduction of the unemployment. In the 8th fire plan, it was through to make right to employment as fundamental right to the charge could be made its constitutionally. तो यहाँ पे जो बात हुई उनसे हम 7 पॉइंट है उसके, उनको हम कंप्लीट करेंगे. सबसे पहले पॉपुलेशन कंट्रोल, दैट इज द मेजर रॉल. If the population are increase, then there is a demanding of the labor force of 15 to 64 ages group. They demand their work. If the controlling the population, then everyone can suitably get job. So first action should be taken by the population control is very very important. अगर वो कमाते हैं तो 15 to 64 वाले अगर कम
पॉपुलेशन के अंदर होंगे तो उन सभी को मौका मिलेगा काम करने का, जॉब अच्छी तरह से उन सभी को मिल सकते हैं। सेकंड, इंक्रीज इन द रेट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन वन ऑफ द कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन ऑफ द रिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय द इंक्रीजिंग द रेट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द इनिशियल year of the planning. The rate of economic development used to as the low rate of 3 to 3.5. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज कंटिन्यूसली इंक्रीज एट दी हायर रेट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे तो हमारा 100% पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, ये सभी सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट डेवलपमेंट करेगी। किस तरह से इकोनॉमिकल डेवलपमेंट किस तरह से हो सकता है? दे नीड इन्वेस्टमेंट। आपके आजू बाजू में 5 बैंक है, अगर 7 बैंक होगी तो 2 बैंक एक्स्ट्रा होगी, उसके अंदर वर्कर रहेंगे काम करने के लिए, क्लर्क से लेके प्यून से लेके मैनेजर तक के वहां लोग आ सकते हैं और आपको कुछ ना कुछ पैसे मिलेंगे। अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है तो वहां भी काम करने के लिए वर्कर, मैनेजर, इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट होगी। सो इफ वी वांट टू इकोनॉमिकल डेवलपमेंट वी नीड दिस टाइप ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल 5 सेक्टर, पब्लिक, प्राइवेट, कोऑपरेटिव, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, then it not be very possible, it will be possible. So 3 and 3.5 are not negligible economic development. We need maximum development. We want production, we want to get maximized service, and we want to sell it, and then we can earn so many national income in economy. Employment oriented planning, it is seen that during the planning special emphasis is given to the economic development. Like from the second 5 plan, special importance given to the development of the public sector as a key basic industries, capital intensive industries were developed for a strong foundation of the industrialization was necessary. But in the present situation, employment oriented planning is very important. Employment oriented planning यानी जितने आपके एम्प्लॉयमेंट है, इसके पास जितना नॉलेज है, जितनी इनके पास स्किल है, उससे रिलेटेड उनको जॉब मिलनी चाहिए। फॉर दैट encourage the consumer goods and labor intensive industries, small, medium, cottage industries, they all are the very useful to getting employment oriented planning and getting less unemployment in the economy. In construction sector, their employment oriented planning, more employment can be increased. अगर जो पढ़े लिखे नहीं है उनको हार्ड वर्क करवाना है तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग शुड बी देयर. स्टेट आल्सो कैन कोऑर्डिनेट बिटवीन द कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव. सिर्फ कैपिटल इंटेंसिव से ही हम आगे बढ़ेंगे तो पॉसिबल नहीं है, और सिर्फ लेबर इंटेंसिव से भी अगर हम आगे बढ़ेंगे तो भी पॉसिबल नहीं है. डेवलपमेंट करना है तो वी हैव टू बैलेंस ऑफ कैपिटल इंटेंसिव एंड एज वेल एज लेबर इंटेंसिव. सेकंड, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन. जो एजुकेशन है हमारा वो सिर्फ क्लर्क, अकाउंटेंट ही प्रोवाइड करेगा, मगर नहीं. अब एजुकेशन के अंदर 2015 के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आर फॉर्म एंड कोलैबोरेशन विद द इंडस्ट्रीज वे डेवलप. इंडस्ट्रीज को क्या चाहिए, वोकेशनल एजुकेशनल क्या है, इंडस्ट्रीज को 5 साल के बाद कैसे स्टूडेंट चाहिए, वो एक दूसरे के साथ टाइप करेंगे. टाइप करने के बाद ऐसी एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे ताकि 5 साल के बाद उन लोगों को अच्छी तरह से ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे एम्प्लॉय मिल सके कि वो अच्छी तरह से कमा सके. सो वोकेशनल एजुकेशन आर इम्पोर्टेंट. देन in agriculture field, in commerce field, in some of the service field, which type of employment is required, उनका पहले स्टडी करेंगे, वैसी एजुकेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट करेंगे. सिर्फ बीए बीकॉम वाले हैं वो 5 साल 7 साल तक अगर बीकॉम होने के बाद जॉब ही ढूंढते रहते, इट इज टोटली वर्थलेस. सो दिस टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन आर डिडक्ट and dedicate now. Second, development of the cottage and small scale industries. Here very important, small and cottage have less investment, no any requirement of such a special knowledge, special skills, training are not required. They need some of the least number of capital. They start their self-employment programs. So with the similar capital, in small industries can create 7.5 times more employment than the big industries. India is a capital scarce and labor increase, so they can develop this type of. अगर इंडिया के पास कैपिटल की कमी है और लेबर ज्यादा है तो स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना चाहिए. लाइक प्रोडक्शन ऑफ द सर्टेन गुड्स आर रिजर्व फॉर स्मॉल स्केल. इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन को रिजर्व रखना चाहिए कि ये आप ही कर सकते हो, बाकी उसके अंदर नहीं पड़ सकते. तो दिस आर वेरी हेल्पफुल टू द स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज. एक्सटेंशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, रोड, ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग सिस्टम,
business training centers, these are now very very important for the employment generation. अगर ये सभी फैसिलिटी है, बैंक की फैसिलिटी है, वेयर हाउसेज की फैसिलिटी है, अलग अलग एक रोड की फैसिलिटी है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर को भी अच्छी तरह से बढ़ावा मिलेगा और वहां भी अपने जो वर्कर वहां से अर्बनाइज होकर यहाँ पे आ जाते हैं उनको हम स्टॉप कर सके. स्पीड एंड एक्सपांशन ग्रीन रिवोल्यूशन एट द एग्रीकल्चर सेक्टर. हाई पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, हाई डिपेंडेंस ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर create disguised unemployment, and then same time uncertain monsoon and the insufficient irrigation facility create seasonal unemployment. Solution of the high dependence of the population on agriculture and the capability of the shifting of these surplus people to other sector is very important. अगर ऐसे प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, एग्रीकल्चर को ऊपर बढ़ावा दी जा रहा है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज के अंदर बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो बहुत सारा हमें काम करना पड़ेगा. उसके ऊपर हाइब्रिड जो है सीड्स, बहुत सारी इक्विपमेंट है, वो सभी हमें इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे. जो पंजाब हरियाणा दो ही स्टेट के अंदर जो ग्रीन रिवोल्यूशन है, ऐसा नहीं हर एक स्टेट के अंदर ऐसा हो, वो हमें ध्यान में लेना चाहिए. हेंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया एंड ग्रीन रिवोल्यूशन स्प्रेड वेरी स्पीडली, यानी स्पीडली हमें स्प्रेड करनी है ग्रीन रिवोल्यूशन की बातें. अब काफी अच्छा स्टेटमेंट है, एक मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है कि पीसी महालनोबिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत खतरनाक नाम है, देखना, पीसी महालनोबिस, इट इज अ फाउंडर, फाइंड सपोर्ट. उन्होंने एक डेटा कलेक्ट किए हैं और उनके हिसाब से अगर 1 करोड़ अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, 1 करोड़ अगर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हम इन्वेस्ट करेंगे तो 40,000 पीपल कैन एम्प्लॉय, 40,000 को रोजगारी मिल सकती है और प्रोडक्शन जो है वो 5.7% इंक्रीज होने के चांसेस है. क्या है, अगर इंडिया के अंदर 1 करोड़ एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हम इन्वेस्ट करेंगे तो 40,000 पीपल को एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है. सो प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज इन 5.7%. अगर वही 1 करोड़ किसी इंडस्ट्रीज एरिया के अंदर हम इन्वेस्ट करेंगे, इंडस्ट्रियल एरिया में अगर इन्वेस्ट करेंगे, इंडस्ट्रीज में अगर वही 1 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे, वी कैन जनरेट ओनली 500 पीपल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी सिर्फ 500 लोगों को ही हम रोजगारी दे सकते हैं और उनका आउटपुट जो है 1.4% इंक्रीज होगा. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इफ वी इन्वेस्ट 1 करोड़ इन agriculture field, we can get 40,000 employment and 5.7% increase our production. And if we invest our money in 1 crore in industries area, there are 500 people can employed and 1.4 are increasing the production. So very clear that agriculture sector is very very important. From the estimate of the PC Mahalanobis, it depends and increases the value of the agriculture sector. And also Dr. M.S. Swaminathan are also in favor with महालनोबिस डेटा. स्टेट प्रोग्राम्स सॉल्व द अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारी ऊपर के जो 7 पॉइंट हमने कंप्लीट किए हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे 1951 से हम फायर प्लानिंग के अंदर बहुत सारी हमने योजनाएं बनाई. फिफ्थ फायर प्लान के अंदर हमने देखा कि वो जो योजनाएं थी तो 1 to 5 years तक का तो कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सका. एज ए रिजल्ट द फिफ्थ फायर प्लान various employment oriented scheme like integrated development IRDB, स्वरोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, ट्राइजम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, मनरेगा, नरेगा, स्किल डेवलप, ये सभी गवर्नमेंट ने धीरे धीरे इंप्लीमेंट किए. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे हम शॉर्ट में मनरेगा बोलेंगे, मनरेगा दैट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, उनके जो इस्टेब्लिश ईयर है वो ऑन February 2006. नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वाज स्टार्टेड विद ऑब्जेक्टिव ऑफ providing employment to rural people residents in the backward district. Thus उनको अच्छी तरह से रोजगारी मिले, ऐसे बैकवर्ड फैमिली को जो बैकवर्ड एरिया के अंदर रहते हैं, रूरल एरिया के अंदर रहते हैं, उनको कुछ ना कुछ मिले. वो 2006 से फरवरी से उनका एक मकसद था. The name of NREGA is converted into Manrega on 2nd October 2009. Very important. You mark it, underline, you mark it important, highlight it. On the 2nd October 2009, Manrega was introduced. To make this program successfully, government declared 2nd Feb is employment day. In 1 marks in March 2018. One question for the section B is very important here. 2nd February as employment day. Employment day की announcement हुई थी 2nd February 2 यानी हमें याद रखना है 2 as a employment day. 2 that is date and 2 यानी February. 2 is a non as employment day. In this program, at least one person from each family is given guarantee of getting employment for the 100 days in a year. एक
फैमिली, जो पुअर फैमिली है गांव के, उनके एक मेंबर को 100 डेज की रोजगार दी जाएगी। और उसमें एक बात है, 1/3 ऑफ द टोटल एम्प्लॉयमेंट आर रिजर्व फॉर द फीमेल पर्सन, फीमेल के लिए 1/3 रिजर्व है। और दूसरा, उसके अंदर 7 दिन के अंदर उनको जो भी पैसे है उनके अकाउंट के अंदर जमा हो जाने चाहिए, वो एक फैसिलिटी है। मोर एवर, laborer should be provided wages within 7 days and labor should be given employment within 5 किलोमीटर radius of near residence, जो जहाँ पे रहते हैं उनके 5 किलोमीटर के एरिया के अंदर 100 डेज की उनको रोजगारी दी जाएगी, उनको ट्रेन किए जाएंगे। और अगर 5 किलोमीटर से ज्यादा वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो उनको 10% अपने वेजेस के एक्स्ट्रा उनको देने पड़ेंगे। लेबर वर्किंग अंडर द स्कीम आर प्रोवाइडेड जॉब कार्ड, उनको एक जॉब कार्ड दिया जाएगा विच इज वैलिड फॉर द 5 years, 5 साल तक वो जॉब कार्ड वैलिड रहेगा। आफ्टर रिसीविंग जॉब कार्ड, if the labor does not get employment then he has paid employment allowance, employment allowance उनको दिया जाएगा अगर उनको जॉब नहीं मिल रही 5 साल के अंदर। तो ये एक अच्छा मनरेगा का कॉन्सेप्ट हुआ। देन पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना, पडू शगी ध्यान में रखना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शगी श्रमेव जयंती योजना कौन से ईयर में स्टेब्लिश हुई और कौन सा मकसद, वो ही आपको ध्यान में रखना है। 16 अक्टूबर 2014, रिपीट अगेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 16 अक्टूबर 2014, स्टार्टेड एट 16 अक्टूबर 2014 एंड उनका मेन मकसद क्या था, गुड मैनेजमेंट, स्किल डेवलपमेंट एंड वेलफेयर टू द लेबर ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए पडू शगी था। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर यानी जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल है मगर गवर्नमेंट के बेनिफिट नहीं है। गवर्नमेंट 58 ईयर्स के बाद उनको रिटायर करने के बाद उनको पेंशन नहीं देगी, उनके ऊपर जो गवर्नमेंट के बेनिफिट है वो नहीं देगी। ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर वाले, कोऑपरेटिव सेक्टर वाले जो हॉकर्स है, उन सभी के लिए ये प्रोग्राम किया है गवर्नमेंट ने कि उनको स्किल डेवलप हो, वेलफेयर हो सके उनका, उनके लिए ये योजनाएं बनाई गई है। नाउ डुगजी पहला है पडूशगी, ये डुगजी यानी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना। ज्योति आई यानी लाइट, ये लाइट यानी इलेक्ट्रिसिटी, 24 आवर्स गांव में बिजली के लिए ये प्रोग्राम है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, डुगकी, ऊपर डुगजी था अब डुगकी है, डुगकी यानी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। उसके अंदर एज ग्रुप काफी इंपॉर्टेंट है, 18 to 35 ईयर्स के जो एज ग्रुप वाले हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का प्रोग्राम है। और वो 25 सितंबर 2014 पे स्टेब्लिश हुई। प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर इरिगेशन प्रोग्राम, Prime Minister Agriculture Irrigation Program. This program was started on the 1st July 2015 with the objective of the water to every field to increase field productivity, optimum use the available resources and planning of the irrigation facilities to agriculture area. So in this program, government have to decide on 1st July 2015 with one objective, water to every field. Those who are in agriculture field, those who are farmer, those who are want to facility of water, this facility provided by this program by the Prime Minister Agriculture Irrigation Program, and it will be it was start in 1st July 2015 with only one objective, that is water to every field. Water to every field in sense of everyone can get water, there are no need of any monsoon availability is there, so everyone can get water and they can do production in their agriculture. These are completed. Now very important session for you, that is one line answer A B C D E, that is very very important. So here we are discussing revision round. Now this is very very important for you, रिविजन राउंड नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अभी तक के जितने भी आपने हाफ एन आवर या 45 मिनट में जो भी आपने किया है, अगर ध्यान से नहीं पढ़ा है तो अब के बाद जो भी यहाँ पे क्वेश्चन आंसर होंगे वो ध्यान से पढ़ना, काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन के आंसर आपको बोर्ड में भी आएंगे, कैसे लिखना है, कौन से पॉइंट को याद रखना है, CDE के अंदर कैसे हम आगे बढ़ेंगे, वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट अवर रिविजन राउंड विथ क्वेश्चन आंसर मेथड्स। પુસ્તક એવો શિક્ષક છે કે જે કષ્ટ આપ્યા વિના, ટીકા કર્યા વિના અને પરીક્ષા આપ્યા વિના આપણને હંમેશા શીખવતો રહે છે। પુસ્તકને સદા વાંચતા રહેજો, કંઈક ને કંઈક નવું શીખવાનું મળશે। किसी की वो क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, एग्जाम भी नहीं देंगे, मगर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दैट इज कॉल्ड
our book को हम पढ़ते रहे. So start first. MCQ. Which type of production technique increase on implement, that is called employment, implement, that is called employment, unemployment, sorry, impairment, that is called unemployment also. First is capital intensive method and second is uh, sorry, which type of production technique increase the unemployment. Here one error are there, keep in mind that very easy for you, and it is misprint. Impairment नहीं, ये unemployment है. Which type of production technique increase unemployment. ध्यान में रखना, यहाँ गलती से हो गई, आई एम हार्टली सॉरी टू ऑल ऑफ यू. यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट होगा, लास्ट जो सेंटेंस है ना ये वाला इम्पेरिमेंट, ये इम्पेरिमेंट नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है. कीप इन माइंड दैट. विच टाइप ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक इंक्रीज ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज कॉल्ड कैपिटल इंटेंसिव. टू मेक मनरेगा सक्सेसफुल, विच डे हैज बीन डिक्लेयर बाय द गवर्नमेंट एज एम्प्लॉयमेंट डे. एम्प्लॉयमेंट डे टू हमने बोला था, यानी 2 फरवरी 2 ध्यान में रखना, 2. थर्ड, a person is capable, willing and ready to work at current wages rate but not getting work is said to be open unemployment, that is called unemployment or open unemployment. Fourth, which type of unemployment rise due to lack of effective demand. effective demand की वजह से कौन सी unemployment है, that is called cyclical. It is lack of effective demand, it is depression and inflation causes, that is called cyclical unemployment. Compulsory nature of the unemployment is seen in which context of labor supply, that is called active labor supply. In economics, by which nature is all unemployment considered, that is called unwilling. In developing countries, which type is a main problem of unemployment, that is called structural. According to the P.C. Mahalanobis, how many person can be employed in agriculture and industrial sector respectively by investing 1 crore, which sectors. 4,000 and 500, which sector नहीं है, ध्यान में रखना. 1 करोड़ अगर हम एग्रीकल्चर के अंदर रखेंगे तो 4,000 एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, और वही 1 करोड़ अगर हम इंडस्ट्रीज के अंदर डालेंगे तो 500 एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकेगी. इट इज एस्टिमेटेड बाय पीसी महालनोबिस. इन विच एज group is open unemployment seen more, that is 15 to 25, that is open unemployment. What is the marginal productivity of disguised unemployment. मार्जिनल 5 को निकाले कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रोडक्शन में, यानी उनकी प्रोडक्शन की मार्जिनल एबिलिटी कितनी है, 0. इन इंडिया, हाउ मच द पॉपुलेशन इंक्रीज एवरी ईयर, 1.7 करोड़. हर साल ऑस्ट्रेलिया की एक जो पॉपुलेशन है वो हमारे इंडिया के अंदर बढ़ रही है. इन 11th फाइव प्लान, व्हाट वाज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज 7.8, 7.8 याद रखने, 7.8 आजू बाजू में ही है. 10th में पूछा जाए, 10th फाइव प्लानिंग में 7.6 ध्यान में रखना. 11th में है 7.8. Answer in one liner. State the definition of unemployment given by Pigu. Very important from starting of our page. That is, a person can be called unemployed only when he is willing to work but not able to find work. It is called unemployment. What type of unemployment is seen in India? Structural unemployment. Explain meaning of unemployment. A situation where a person is ready to capable of working at current wages rate but does not get work. It is called unemployment. Which type of unemployment is seen in developed country? That is called cyclical and frictional. Very important. In developing country there is structural unemployment. In developed country cyclical and frictional. याद रखना, बाहर के कंट्री के अंदर भी अनएम्प्लॉयमेंट है, मगर बाहर के कंट्री के अंदर साइकिल चलानी पड़ती है, यानी साइक्लिकल, और फ्रिक्शनल यानी जो टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, बाहर जल्दी टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, तो वहाँ ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट होती रहती है. Depression is called world's Great Depression. 1929, which is in America and England, that is called in Americas, that is called World Depression. 1929, 30 हम 11 से पढ़ रहे हैं. From where is information regarding extent of unemployment in India obtained? कहाँ से हम ढूंढ पाएंगे, तो यहाँ पे in India information regarding extent unemployment is obtained from Planning Commission, और उसके साथ Central Statistical Organization, National Sample Survey of the labor and general published employment exchange report. ये 3 जगह से हम अपने unemployment के डेटा ढूंढ सकते हैं. Which age group is called productive age group? That is called 15 to 64. 15 to 64. 15 to 64 is called productive group. Which slogan is given by Prime Minister Agriculture Irrigation Scheme? That is water to every field.
When was Pandit Dindayal Upadhyay Shrameva Jayati Yojana? Pandit Dindayal Padur Shagi, that is called 6th October 2014. Padur Shagi, 16 October 2014. India, what type of problem is unemployment in India? In India, what type of problem of unemployment? That is economical, social, ethical and political. ये चार तरह के प्रॉब्लम इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट से होते हैं. Who is called is openly unemployed? The person who are ready to work at current wages and qualified to but do not get any work are said to be openly unemployed. यानी जो पर्सन रेडी है, जो भी करंट वेजेस पे काम करने के लिए रेडी है, क्वालिफाइड भी है मगर उनको काम नहीं मिल रहा है, वो ओपनली अनएम्प्लॉयड है. देन आफ्टर स्टेट द पॉपुलेशन मेथड्स टू मेजर एन ओपन अनएम्प्लॉयमेंट. ओपन अनएम्प्लॉयमेंट हम कैसे मेजर करेंगे? तो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, सेकंड सैंपल सर्वे ऑफ लेबर सप्लाई एंड थर्ड सेंसस. ये तीनों के अंदर से हम अपने ओपन अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा को मिल सकते हैं. आई रिपीट अगेन, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, सैंपल सर्वे ऑफ लेबर सप्लाई एंड सेंसस. व्हाट इज द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट? व्हेन इन प्रोडक्शन प्रोसेस because of changes in the new technology unemployment arises is called frictional unemployment. यानी स्मार्टफोन आ गए तो कीपैड वाले जो वर्क करते हैं उनको अपग्रेड होना पड़ेगा, वरना वहां से उनको हटा दिया जाएगा. दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल. What is brain to brain? Very important. One-sided movement of intelligence from India to abroad called brain to drain. इंडिया के जो दिमाग वाले हो बाहर जाके अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, that is called brain to drain. यहाँ पे बी नहीं है, डी लिखना यहाँ पे रॉन्ग है थोड़ा सा. दिस इज ब्रेन टू ब्रेन नहीं, दिस इज ड्रेन टू ब्रेन. हार्टली सॉरी टू ऑल ऑफ यू. ब्रेन टू ड्रेन नहीं, ड्रेन टू ब्रेन. ड्रेन यानी बह जाना और ब्रेन यानी हमारा अच्छा दिमाग. भारत के अच्छे लोग बाहर जा रहे हैं. नाउ सी टू डी, सी और डी के लिए एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट. अब सी और डी के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है कौन से पॉइंट आपको प्रेजेंट करने हैं, कौन से दिमाग में सेटअप करने हैं. यहाँ पे जो पॉइंट लिखे हैं, अगर इतने पॉइंट ही आप लिखोगे यू विल गेट 0. ध्यान में रखना, दिस इज द वे. ये वे है आपके लिए. सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है हमें फुल एम्प्लॉयमेंट की. हम सभी जानते हैं, अभी डिस्कस करके आए हैं हम पूरा चैप्टर को. तो डेफिनेशन क्या है फुल एम्प्लॉयमेंट की, हम सभी को जानते हैं कि दोज हु आर रेडी फॉर द वर्क, दे आर एम्प्लॉयड, दे आर गेटिंग एजुकेशन, they have fully qualified, even they are not and ready to religious rate. अगर उनको मिल नहीं रहा काम तो वो ओपनली या फुल्ली एम्प्लॉयमेंट है. उनके रीजन बहुत सारे हैं. गांव से लोग आ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, बहुत सारे क्वालिफाइड पर्सन है, अट्रैक्ट होके यहाँ अर्बनाइज हो रहे हैं और वो गांव उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, स्किल नहीं है और बहुत सारे जगह वो जॉब ढूंढ रहे हैं. दिस आर द रीजन. और उसका मेजरमेंट 3 तरह से होता है, वो ध्यान में रखना है हमें. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के डेटा से, सैंपल सर्वे फॉर द लेबर सप्लाई और सेंसस से, और बेसिकली फुल एम्प्लॉयमेंट की एज ग्रुप. ये 4 पॉइंट आपको ध्यान में रख के लिखना है, ध्यान में रखना है. 4 पॉइंट, डेफिनेशन, रीजन, मेजर्ड थ्रू और एज ग्रुप. ये 4 पॉइंट से आपको 2 मार्क या 3 मार्क मिल सकते हैं. लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज मोर एप्लीकेबल फॉर इंडिया एक्सप्लेन दिस. ये सभी क्वेश्चन बोर्ड के क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछे गए हैं कि इंडिया में लेबर इंटेंसिव क्यों प्रिफरेबल है. तो उसके रीजन फर्स्ट ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है इंडिया के अंदर. पॉपुलेशन के बेस बहुत सारी डिमांड हो रही है. सप्लाई फोर्स आर मोर देन द अपॉर्चुनिटी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट. ये एक मेन रीजन है. तो अगर हम कैपिटल इंटेंसिव मेथड से जाएंगे तो कैपिटल अगर एक कंप्यूटर रख दिया तो 100% 3, 4, 5 तो वर्कआउट हो ही जाएंगे. तो ज्यादातर टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ेगी. एविडेंस ऑफ द लेबर, बहुत सारा हमारे पास लेबर का फोर्स है, तो उनको अगर हम कैपिटल इंटेंसिव से रखेंगे तो वो ऐसे वैसे पड़ रहेंगे. मगर हर एक जगह जो कॉटेज और स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज के अंदर भी वहाँ लेस इन्वेस्टमेंट है, उनके पास नॉलेज नहीं है तो भी वो कर सकते हैं. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के भी चांसेस यहाँ पे है. फॉल इन द सेकंड फाइनल प्लान की बात हमें करनी है. जो बिग और हैवी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने की बात हुई, प्राइवेट सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर को निगलेक्ट किया, उसका रिजल्ट ये हुआ कि एम्प्लॉयमेंट के जो रेट, अनएम्प्लॉयमेंट के रेट जो कम हो रहे थे वो बढ़ गए, क्योंकि उनको निगलेक्ट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं की फैसिलिटी. तो डायरेक्टली उसके ऊपर रीजन ये हुआ कि लेबर इंटेंसिव मेथड के अंदर उनको ज्यादा पहले इंपॉर्टेंस दिया गया था, मगर सेकंड फाइव प्लान के अंदर टेक्नोलॉजी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया तो वो अनएम्प्लॉय हो गई. और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर मैक्सिमम अगर टेक्नोलॉजी से अगर हम चाहेंगे तो वहाँ वर्कर ट्रेन नहीं है, उनके लिए टेक्निक
नहीं काम करेगी तो उनको लेबर इंटेंसिव से ही जाना पड़ेगा। 4 पॉइंट ध्यान में रखना है आपको, पॉपुलेशन, एविडेंस ऑफ लेबर, fall in fires planning and fail in fire second fire planning of big and heavy industries conducted and agriculture के अंदर हमें लेबर से ही ध्यान में लेना पड़ेगा। When and what objectives Prime Minister Agriculture Irrigation Scheme was started? तो 1 जुलाई 2015 प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर के अंदर जो है वो 2015 से स्टार्ट हुआ था और ऑब्जेक्टिव था वाटर टू एवरी फील्ड, हर एक को पानी मिले। नाउ डी, explain the measure given by the Raj Krishna to understand the nature of the unemployment. Nature of the unemployment यानी unemployment को हम कैसे उनके अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करेंगे, तो उनके लिए उन्होंने 4 बातें ध्यान में रखी थी। वो 4 बातें ध्यान में रखने के लिए एक यहाँ पे अच्छी तरह से आपको एक की मिलती है सेक्शन डी और ई के अंदर। हर एक क्वेश्चन के अंदर थोड़ी थोड़ी की मिलेगी जो आप अच्छी तरह से याद कर पाओगे। अच्छी तरह से आपको याद कैसे रखना है वो आपको दिमाग में सेटअप होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख सकते हैं कि विलिंग ऑफ टिप ऑलवेज रिस्पेक्ट बाय वेटर्स। वेटर्स को अगर हम टिप देंगे तो वो हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। वेटर्स को रिस्पेक्टफुली हमें टिप देनी है। टिप हर एक रेस्टोरेंट में हम जाते हैं तो वेटर्स को देते हैं, तो टिप हमारे लिए टिप बनती है। विलिंग ऑफ टिप, वो हमसे वेटर्स एक्सपेक्ट करते ही है, विलिंग होती है उनकी कि हमें कुछ ना कुछ टिप मिले, बस ये बात ध्यान में रखनी है। विलिंग ऑफ टिप ऑलवेज रिस्पेक्ट अवर वेटर्स। विलिंग ऑफ टिप ऑलवेज रिस्पेक्ट अवर वेटर्स। तो यहाँ पे विलिंग यानी विलिंगनेस, सेकंड टी फॉर टाइम, आई फॉर इनकम एंड पी फॉर प्रोडक्टिविटी। ये 4 पॉइंट के ऊपर राजकृष्ण ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिखाए है। पहले टाइम में 28 लेस, वीक के अंदर अगर 28 आवर्स भी आपको काम नहीं मिल रहा, हाई टेंडेंसी आपकी है। सेकंड 28 से ज़्यादा मगर 42 से कम मिल रहा है तो आप लो टेंडेंसी के अंदर आते हैं। इनकम 30,000 परिवार को चाहिए, आप 15,000 ही कमा रहे हैं। प्रोडक्टिविटी, आप पूरे 8 आवर्स काम करना चाहते हैं, 5 आवर ही आपको दे रहे हैं। विलिंगनेस, आप काम करना चाहते हैं मगर आपको काम नहीं मिल रहा है। ये 4 पॉइंट ध्यान में रख के राजकृष्ण कमेटी के अंदर राजकृष्ण ने अपने अनएम्प्लॉयमेंट को डिवाइड किए हैं। दैट इज विलिंग ऑफ टिप, बस इतना याद रखो। विलिंग ऑफ टिप दैट इज टाइम, इनकम एंड प्रोडक्टिविटी। विलिंगनेस तो है ही, ये क्वेश्चन सेक्शन डी के अंदर है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट विद एग्जांपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अंदर डेफिनेशन अच्छी तरह से पता है। जहाँ 20 चाहिए, जहाँ 10 चाहिए वहाँ 20 खड़े हैं, 20 चाहिए वहाँ 25 खड़े हैं, 5 को निकाल दो, वैसे की वैसी रहेगी। दैट इज जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, ये बात ध्यान में रखनी है, ये वर्ड होना ही चाहिए। अदर नेम्स, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है उनका अदर नेम डिस्गाइज का। हमें दिखाई नहीं देता कि वो क्या कर रहे हैं, दिखाई देते काम करते हो मगर उनको निकाल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रोडक्शन में। तो वो जो हिडन है वो उनके अलग नाम है। पॉपुलेशन बर्डन ऑन द एग्रीकल्चर बट आउटपुट ऑफ सरप्लस लेबर इज जीरो। हम देख सकते हैं कि बहुत सारा बर्डन है एग्रीकल्चर के अंदर, बहुत सारे, मगर बहुत सारे एग्रीकल्चर फील्ड में से फार्मर को निकाल दो तो भी आउटपुट वैसे का वैसे। दैट मीन्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ दोस्त लेबर एंड फार्मर्स आर रिमेन जीरो। और उसके एग्जाम्पल, किसी एक फील्ड का एग्जाम्पल ले लो, फील्ड के अंदर 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन करवा लो, 1000 यूनिट बनाने के लिए 10,000 यूनिट बनाने के लिए 10 अगर मेंबर की रिक्वायरमेंट है और 10 की जगह हम 5 से ही वो करें और प्रोडक्शन में कोई भी फर्क ना पड़े तो वो 5 जो है वो अनएम्प्लॉय है, वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉय है। तो ये बात हुई हमारी डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की। काफी इंपॉर्टेंट सेक्टर क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेविंग पीपल एंड इन्वेस्टमेंट पीपल व्हाट डिफरेंट इन इंडिया, सो इक्विलिब्रियम बैलेंस इज नॉट मेड। ये चाबी नहीं है, ध्यान में रखना। पॉइंट कैसे याद रखने, सेविंग पीपल और इन्वेस्टमेंट पीपल आर टोटली डिफरेंट इन इंडिया। इंडिया के अंदर दोनों अलग है, तो उनके बीच जो बैलेंस होना चाहिए वो नहीं है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सेकंड पॉइंट, वेव्स ऑफ बूस्ट एंड रिसेशन। वेव बूस्ट यानी तेजी, तेजी के बारे में हमें सोचना है, और रिसेशन यानी डिप्रेशन, मंदी के बारे में सोचना है। तो एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनिंग कंडीशन, जो कंडीशन है दोनों की वो हमें एक्सप्लेन करनी है। बूस्ट कंडीशन और रिसेशन कंडीशन के बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। सेकंड, जो रिसेशन यानी डिप्रेशन की कंडीशन है, वो डिप्रेशन कहाँ कहाँ थी, कब आई थी, वो भी हमें ध्यान देना है। जैसे 1929 और 30 के अंदर वर्ल्ड डिप्रेशन अमेरिका और इंग्लैंड के अंदर आई, वो हमें डिस्कस करना है। यानी इन्फ्लेशन और डिप्रेशन से जो साइकिल बनेगी और उनसे जो हमारे इफेक्टिव डिमांड नहीं होती, उसकी वजह से जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट के लॉट बढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड साइक्लिकल
अनएम्प्लॉयमेंट, यानी इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन ड्यू टू वन फैक्टर बिहाइंड दिस, वो हमें सब कुछ अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है। ये वे है आपको कि 1 2 3 4 5 6 पॉइंट ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है, उसके बाद साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट आप आसानी से रीड कर पाओगे, क्योंकि टेक्स्ट बुक के अंदर पूरा पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर से ये पॉइंट निकालना है हमें और उसके बाद हमें लिखना है। प्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Now section E for long question. There are two important questions. What are the reason of the unemployment? Describe any five. Total 11 पॉइंट है, 11 पॉइंट में से कोई भी 5 ही आपको पूछेंगे, कोई भी 5 यानी कोई भी 7 भी पूछ सकते हैं, डिपेंड ऑन एग्जामिनर। तो हमें कैसे याद रखने हैं पॉइंट को, तो हमने पॉइंट को याद रखने के लिए छोटी छोटी की बनाई है। पहले 4 पॉइंट की, उसके बाद दूसरे 4 पॉइंट की, उसके बाद थर्ड 3 पॉइंट की, यानी टोटल हमारी जो की बनती है वो 4 पॉइंट से बनती है। सबसे पहले हाई राइज लो कैपिटल, बस इतना दिमाग में रखना। हाई राइज लो कैपिटल, 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 हाई राइज लो कैपिटल। आप भी 10 बार 20 बार बोलो मेरे साथ तो आपको एक सेट होगा। हाई राइज लो कैपिटल, हाई राइज यानी क्या? फर्स्ट इज हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, यहाँ पे हाई, यहाँ पे मैच हो रहा है, यहाँ पे हाई राइज एंड लो। सेकंड, राइज के अंदर ये राइज है, स्लो राइज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। पूरे पॉइंट को हमने डिस्कस किए हैं, डीप में डिस्कस किए हैं बिफोर इन दिस वीडियो। थर्ड पॉइंट है राइट लो, लो दैट इज लो रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। लो यहाँ पे स्पेलिंग एरर है, लो ये दोनों लो में ये LAW नहीं LOW, मगर ये सिर्फ जानने के लिए है कि हाई राइज में लो कैपिटल बन जाती है। लो यानी हमारा कम, यानी लो रेट ऑफ सेविंग्स इन्वेस्टमेंट। एंड फोर्थ इज कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक। हाई राइज लो कैपिटल, बस ये आपको ध्यान में रखना है। हाई राइज यानी हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन, राइज दैट इज स्लो rise in the employment opportunity, low that is low rate of the saving and investment, and capital that is capital intensive production technique। ये 4 पॉइंट हमने दिए। अब सेकंड 4 पॉइंट को ध्यान में लेंगे हम इस सेंटेंस से, ये की मास्टर की है आपके लिए। एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो इनसफिशिएंसी दूर होगी और मैन पावर बढ़ेगा। एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मजबूत होगा तो कौन से फल मिलेंगे हमें? इनसफिशिएंसी दूर होगी और मैन पावर बढ़ेगा। जो अंडरलाइन वाले पॉइंट है वो पॉइंट है हमारे लिए। एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो इनसफिशिएंसी दूर होगी और मैन पावर बढ़ेगा। तो सबसे पहले एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब लैक ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। सेकंड पॉइंट infrastructure, that is called lack of infrastructure facility. Third point, insufficiency, that is insufficiency of the public sector. Then manpower, that is lack of manpower. ये एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो इनसफिशिएंसी दूर होगी और मैन पावर बढ़ेगा। एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो इनसफिशिएंसी दूर होगी और मैन पावर बढ़ेगा। ये आपको दिमाग में रखना है, सेट कर देना है। ये सेंटेंस बार बार बोलने हैं तो 4 पॉइंट आपके दिमाग में सेट हो ही जाएंगे। क्या लिखना है, कैसे लिखना है, दैट वी डिस्कस्ड अर्लियर, so there is no need, only how to remember this point is very very important. What are the key? Then after last 3 point, हमारी कंपनी के मोबाइल के टावर एग्रीकल्चर के अदर फील्ड में पकड़े जाते हैं। हमारी कंपनी के मोबाइल के टावर एग्रीकल्चर के अदर फील्ड में पकड़े जाते हैं। तो मोबाइल यानी लो मोबिलिटी ऑफ वर्कर, ध्यान में रखना, मोबाइल का कोई काम नहीं यहाँ पे। हमारी कंपनी के मोबाइल के टावर, टावर यानी एग्रीकल्चर यानी निग्लिजेंसी टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर फील्ड, और अदर यानी अदर फैक्टर। ये 4 पॉइंट को याद, 11 पॉइंट को याद रखने के लिए 4 + 4 + 3 ऐसे आपके दिमाग में सेटअप कर देने हैं। कौन से 5 अच्छे लिखने हैं वो इस डिपेंड ऑन यू, मगर 11 पॉइंट को याद रखने का एक तरीका है जो आपको स्टार्टिंग में लिखना ही पड़ेगा कि 11 पॉइंट ये है, उनमें से हम 5 पॉइंट लिख रहे हैं। दैट इज द की। नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर द मेजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? एक्सप्लेन इन 5। कैसे हम सॉर्ट आउट करेंगे, सॉल्यूशन क्या है उनके? तो उनके लिए काफी अच्छा एक की हम आपके सामने ब्रैकेट के अंदर है। देश का पॉपुलेशन प्लानिंग से होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा और एजुकेशन सभी को मिलेंगे और देश आगे बढ़ेगा। देश का पॉपुलेशन प्लानिंग से होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। अगर पॉपुलेशन प्लानिंग होगा तो इकोनॉमिक डेवलप होगा और एजुकेशन सभी को मिलेंगे और देश आगे बढ़ेगा। आप ध्यान में रखना, पॉपुलेशन यानी पॉपुलेशन कंट्रोल, सेकंड प्लानिंग यानी एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी डेवलपमेंट ऑफ द इंक्रीज इन, थर्ड पॉइंट दिस वन, इंक्रीज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देन आफ्टर education, education that is employment oriented education, employment oriented education. Then
देश, दिमाग में रखना, देश के डी, डी यानी डेवलपमेंट ऑफ द कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ई, ई स्टैंड फॉर एक्सटेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, और एस दैट इज कॉल्ड स्पीड एंड एक्सपांशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। यानी देश का पॉपुलेशन प्लानिंग से होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा और एजुकेशन सभी को मिलेंगे और देश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। देश में डीईएस ध्यान में रखना है, कोई कंट्री की बात नहीं हो रही। देश, डी डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज, ई एक्सटेंशन एक्सटेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और एस दैट इज स्पीड, स्पीड ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये सभी बातें आपके दिमाग में सेट करनी है, 2-3 बार लिखने हैं। जहां टेक्स्ट बुक लेके बैठे हो, जहां आप डाइजेस्ट लेके बैठे हो, तो उसके बाजू में ये ट्रिक लिख दो, आसानी से आप एग्जामिनेशन में आप पास हो जाओगे। ये ट्रिक से आपको क्या होगा कि एक टेंशन नहीं होगा कि हमें पॉइंट याद रहे कि नहीं रहेंगे, 100% याद रहेंगे ही रहेंगे। सिर्फ उसके अंदर क्या लिखना है वो आपकी जेब में, क्योंकि आपने कंटेंट पूरा पढ़ा है, पॉइंट मिल गए, आप आसानी से जीत गए इकोनॉमिक्स के अंदर। तो ये हमारा चैप्टर जो है वो है यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। आप सर्वोનો વિડિયો અંત સુધી નિહાળવા બદલ આભાર માનું છું। હું આઈસીટી કફોરિયો વતી કૃપેશ નાયક। अब चैप्टर 7 की रिवीजन राउंड के लिए देखते रहिए आईसीटी कफोरियो चैनल। दोस्त हु आर स्टिल नॉट सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, press on subscribe button and bell button, and also install ICT Kafori channel from Google Play Store. I hope you can enjoy this video and not keep with yourself. You have to share and like in this your friends, families, and whatever the educational person are there. So I am heartily thankful to all to watching this video. Thank you. Thanks a lot. Thank you for the day.